So I think most of you would have done somewhat similar work already क्योंकि ये revision है, right? So आपके सवालात हों तो I would like to address them as well, right? तो उस पर आप मतलब पूछिएगा लाजमी. Okay, so what's the Grover problem? And हमारा मसला क्या होता है जो हम solve करते हैं? आप लोगों ने पढ़ा तो हुआ है. So anyone wants to tell me that? Oh, okay, so a search problem, you want to find a get W, for instance. Yeah. If you have a initial condition, you basically want to align that cat with what you're searching for. Yeah. So you have like a unstructured database, ठीक है, and you want to look for something. So classically, you check one by one, right? And in the worst case scenario, आपकी चीज़ index जो है वो end पे पड़ा हुआ है, तो आपको n queries करनी पड़ेगी, right? But जो quantum Grover algorithm है, it makes sure कि आपको square root of n queries करनी पड़ेगी. That's the advantage. So it's like a quadratic increment, right? Okay. So I'm going to first draw like the circuit of it. ये जो सारी बॉक्स के अंदर चीज़ है इसको आप ग्रोवर ऑपरेटर भी कहते हैं, which is the sum of your oracle and your diffuser, and we'll talk about what those are. So आपने ये काम करना है r times, and obviously you have to show that if you're doing something right, then this r is of the order square root of n, right? Because that would then show you that okay, you know, you do indeed have to just repeat it square root of n times. Okay. And then you make a measurement here. And this is also known as the Grover operator. Okay. So what is this and what are two of those things? U of f, and the second is the diffuser. So diffuser is basically h cross n, U of f naught, and h cross n. Okay. So सबसे पहला काम हम वही कर रहे हैं जो कि हर quantum algorithm में किया है. But you might notice that we change our superposition according to what we need. So यहाँ पे what do we do? Well, we know that when this acts on this, what do you get? Superposition of all possible bit strings. Okay, good. So यहाँ पे क्या आता है?
Is that correct? और अगर इधर 1 होता तो क्या आता? Just so you guys tell me, आप लोगों ने मिड भी देना है अभी. -1 power y dot x. वो आता जब ये x होता. So, हाँ, जब ये y होता सॉरी. उस केस में वो रिड्यूस होकर जस्ट x मॉड आ जाना था, जिसको आप हैमिंग डिस्टेंस या हैमिंग वेट कहते हैं. ठीक है, सही हो गया. ओके, सो एक तो पहली बात ये कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन तो नहीं है और नंबर्स के दरमियान हाउ दे ट्रांसलेट इनटू ईच अदर. सो फॉर एग्जांपल 7 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 1 1 है. आई डोंट नो एग्जैक्टली ये है या नहीं है, बट अगर आपको इसमें मसला है तो हम ये कर सकते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. है प्रॉब्लम? सबको आता है? Good. Okay. So now we expand this, and now throughout all of this we're going to assume that W is our solution. Okay, so what we do here is 1 over square root of n, and I'm going to call this state S, and now I have basically 0 1 some W and then n minus 1. यहाँ तक कोई मसला? ठीक है. अगला स्टेप क्या होना चाहिए? टारगेट स्टेट को सेपरेट करना. हाँ, तो वो कैसे करेंगे? बाकी सारे टर्म्स के साथ. Got it. So 1 over square root of n, मैं बार बार लिखना नहीं चाहता, इसकी जगह पे मैं ये लिख लेता हूँ W minus 1 plus W plus 1 here. It's gonna be here, and this thing is now separate, and then I have 1 over square root of n, right, and then just W. वो सेपरेट करके लिख लिया. ठीक है. अच्छा, अब ये जो सम है इसमें से एक टर्म निकल गई है. जब एक टर्म निकल गई है तो योर x कांट बी इक्वल टू W. ठीक है. और यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 1 over square root of n W. पहले ये नॉर्मलाइज था, अब मुझे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. क्या करूँ? तो इस फर्स्ट टर्म को मैं स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1, क्योंकि अब टर्म्स एक कम हो गई हैं, इसे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा. वो मैं अंदर लेके आ रहा हूँ. अभी मैंने ये इनकी बात कुछ भी नहीं की, राइट. आई एम जस्ट प्लेइंग विद माय इनिशियल स्टेट हियर, जिस पे हेडामार्ड लग रहा है, राइट. अभी मैं सिर्फ यहाँ पे हूँ अपने सर्किट में. अभी यहाँ पे मैंने आना है. एनीवे, सो नाउ अच्छा, all of these are going to be mutually orthogonal to W over here. Why is that? कोई एक बिट डिफर कर रही होगी हर किसी की. हाँ, but क्यों? Is that inevitably going to happen, or is that by choice? When I expand something, I have to expand them in a certain basis, right? और वो basis मेरी अपनी मर्जी होती है. Normally यहाँ पे इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं? हम कौन सी basis लेके चल रहे हैं? Z basis. हाँ? Z basis. ऑर्थोनॉर्मल basis, right? So ऑर्थोनॉर्मल का मतलब है कि ये जितनी आपस में म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगी आपस में, right? So now this whole thing I can call what? My W perpendicular, right?
So this reduces to n minus 1 over n w perpendicular plus 1 over square root of n w. सही हो गया? अच्छा, अब इनके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सॉरी ये इन बेसिस स्टेट्स के और इन बेसिस ये तो एक ही बेसिस है, इसमें मल्टीपल पड़ी हुई, राइट? द मेन थिंग इज कि इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं हमें क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट से पता है कि उनके बारे में क्या चीज़ ट्रू होनी चाहिए। हाँ, mod square equal to 1. And this also gives us a certain idea कि यार एक ही नंबर है, how about we try to parameterize it in terms of sines and cosines, so हम graphically चीज़ों को लेके चल सकें, जिससे हमें बेहतर आइडिया होगा कि चीज़ों को आगे लेके कैसे चलना है। जस्ट लाइक आप वैसे ही सोच रहे थे और आपने कहा कि ओके यार ये कंडीशन एक अच्छी लग रही है, तो हम इसको पैरामीटराइज कर लेते हैं कोसाइन से और साइन से। सो इसको आपने कह दिया कोसाइन अल्फा और दूसरे का आपने कह दिया साइन अल्फा। And now your state becomes your x is just cosine alpha w perpendicular plus sine alpha w. This is n by the way. ठीक हो गया? और ये आपका एंगल है। अच्छा, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी वो प्लीज बताएं। अगर ये मेरा W है और ये मेरा W परपेंडिकुलर है, आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ, ये तो ऑलरेडी है बट इसको मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ एक लाइन के ऊपर, ठीक है? और ये एक वेक्टर मैंने कह दिया कि क्योंकि मैंने नाम ऑलरेडी अभी चेंज कर चुका हूँ, सो आई कैन जस्ट अस्यूम कि ये एक प्लेन के ऊपर पड़े हुए हैं और इधर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? सो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर मैंने S ड्रॉ करना हो तो वो क्या बनेगा? वेक्टर साइज वेक्टर ऑफ, सो ये है लेट्स से S, राइट? अल्फा कहाँ पे है? इसके नीचे इसके नीचे। And why is that? ये Because ये कोसाइन और ये वाला साइन। ठीक हो गया? उल्टा तो नहीं कर दिया हमने? कोसाइन नीचे है, साइन वर्टिकल। लिखा तो सही हुआ। लिखा तो सही हुआ, अल्फा सही लिखा आपने। नहीं अल्फा भी ठीक है, फिर यहाँ पे आई थिंक परपेंडिकुलर होना चाहिए। नो वो भी सही है। The cosine is the horizontal one, sine is the vertical one. This and this, so this is the sine one Yeah. and this is the cosine one, right? Yep. ठीक है, अभी तक के लिए ये हमारी पिक्चर, S को हमने यहाँ तक ले आए हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं U of F की तरफ। ऑरिकल क्या करता है? एक जनरल ऑरिकल, फेज ऑरिकल क्या करता है? जी Target state के साथ negative is अच्छा, ओके। जो फेज ऑरिकल है ना, उसी का स्पेशल केस है जो आप लोगों ने ये वाला ऑरिकल पढ़ा था, U of F, जो आई थिंक जॉर्जा में पढ़ा था। माइनस था शायद कुछ इस तरह से, और ये x था और ये आ जाता था f of x माइनस समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे y होता है और यहाँ पे y, द मोस्ट जनरल, राइट?
ये उसी का स्पेशल केस है, और इसकी खास बात ये है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है आगे वाले की, राइट। सो ये बेसिकली ये करता है -1 to the f of x, so f of x को इम्प्लीमेंट करता है, एंड जस्ट ये आपने जैसे डिफाइन करना है वो आप कर लो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली या तो ये नेगेटिव लगा देगा या फिर पॉजिटिव लगा देगा, ठीक है। सो f of x equals to 0, इसको पीसवाइज डिफाइन कर लेते हैं। If x not equal to w, and 1 if x equal to w. Let me check if I'm defining this right. Not equal to बिल्कुल ठीक है। So this is what it does to an arbitrary state. Okay. अच्छा। So अभी s के साथ क्या करेगा? इसके साथ क्या करेगा? What happens when you have add applies to s? Good. बिल्कुल सही, किसने कहा माइनस साइन? या सो जब आपने ये चीज़ लिख ली है, राइट, और आपने f of x की बात कर ली है कि जब सोल्यूशन होगा तो f of x would be equal to 1, which would then give you -1 raised to the power 1, so that is negative. So this would just give you cosine of alpha minus sine alpha. ठीक है। इसी डायग्राम पे अगर हम उसकी बात करें तो वो कहाँ पे आएगा? और बाय द वे वी कॉल दिस s प्राइम। जी, ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये कहाँ पे होगा? Good. So this. ठीक हो गया। अगला स्टेप क्या है? अच्छा, ये तो जनरल फेज ऑरिकल था और उससे हम इधर आ गए हैं। अच्छा, व्हाट इज द समथिंग्स, क्या हुआ क्या यहाँ? इसने क्या किया है? एम्पलीट्यूड को, हाँ, लेकिन साइन चेंज करके, राइट। सो जी, फेज इंट्रोड्यूस हुआ। बट अगर आप एम्पलीट्यूड्स की एवरेज की बात करो, ठीक है, अब जो नई एवरेज होगी वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले सबका एम्पलीट्यूड सेम था। अब नाउ यू हैव -1 एम्पलीट्यूड, राइट, जिसकी वजह से जो आप ओवरऑल एम्पलीट्यूड्स की एवरेज आएगी वो कम होगी थोड़ी सी, बट क्योंकि एक ना गुड। सो एक तो ये रिप्रेजेंटेशन है जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, द अदर इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। Amplitudes
गई और ये आपका S है फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम कर लें 4 है और अब आपकी इस तरह से हो गई, एक नीचे चली गई है राइट बाय द सेम मार्जिन और यू यस फाइन हो गया। इसकी थर्ड वाली अभी जब वो डिफ्यूज़र वाला आएगा तो उसमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, बट अभी के लिए तो ये सिंपल सी बात है कि वो नीचे हो गया, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। Okay, now let's talk about U of F naught जो डिफ्यूजर के अंदर पड़ा हुआ है, this one, ये भी फेज ऑरिकल है राइट, बट नॉट का मतलब क्या है, जीरो इधर क्यों आ रहा है वो हम देखते हैं अभी, बट इसने भी काम क्या करना था, ये जब लगता है x पे अगेन इन जनरल तो -1 to the f of x and your state back. Now I'm going to do two things. एक तो ये कि f of x को मैं डिफाइन कर रहा हूँ यूं, 1 if x is equals to 0, 0 if x is equals to not equals to 0, ठीक है। अब ये मैंने डिफरेंटली डिफाइन किया है, ठीक है। इससे इधर क्या होगा ये प्लीज बताएं। ये इक्वेशन इसको मैं इम्प्लीमेंट करूं तो कैसे करूं, so जब x is equal to 0, sorry x is not equal to 0 कर लेते हैं पहले, जब x is not equal to 0 what do I get, just x right, when x not equal to 0, when x is equal to 0 what do I get, -x 0 right, यहाँ पे तो मैं 0 लिखूंगा ना, ओके एंड देन माइनस जी, सही हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है, ओके गुड। अब एक डेफिनेशन ये है, मैं इनको स्वैप भी कर सकता हूँ, और स्वैप करने की रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि इट्स लाइक राइट को राइट कह रहे हो, लेफ्ट को लेफ्ट कह रहे हो, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, आपने जिसको जो कहना है, अगर आपकी कन्वीनियंस है तो मैं लॉजिक को इन्वर्ट भी कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको ये कर देता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, और इसको मैं f of naught करके डिफाइन कर रहा हूँ, जस्ट सो यू नो, f naught of x is 1, this is this. अच्छा, इससे अब क्या होगा, 0 पे पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। 0 पे पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, when x is not equal to 0, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, जस्ट सो वन मोर थिंग, इनकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इन दोनों की,
U of f की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है? डायगोनल वंस होंगे बस जहाँ पे Identity की तरह लेकिन एक negative है। हाँ बिल्कुल। और जो दूसरे वाला होगा ये इसके क्या होंगे? बस 0 पे प्लस होगा एंड डायगोनल साइड -1 होगा। Right. ये बात समझ आई है या नहीं आई किसी को? हाँ। अच्छा, अब मैं ना u of f को और u of f नॉट को अगर मैट्रिक्स सॉरी आउटर प्रोडक्ट नोटेशन में लिखूं तो क्या आएगा? जो आप लोगों ने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताई थी, राइट, उसी से आप आउटर प्रोडक्ट नोटेशन बता सकते हो। आइडेंटिटी -2 टाइम्स। हाँ बट वो आता कैसे है? आइडेंटिटी क्योंकि हम लोगों ने सारे डायगोनल्स को 1 रखना है और जिसे माइनस करना है उसमें -2 टाइम्स वो वाले आउटर प्रोडक्ट कर लें जो माइनस हो जाए। हाँ बट ओके यू आर राइट, उस तरह से भी कर सकते हैं, बट ये आइडिया जो मुझे इस तरह से समझ आ रहा था, ये देखो ये आ गया एक आपका माइनस WW राइट और प्लस n-1 राइट, और फिर आपने इधर प्लस और माइनस ये कर दिया एक दफ़ा राइट, और -2W को उधर ले गए और बाकी सारा आपका आइडेंटिटी आ गया। This will then give you identity -2 यहाँ पर u of f हो गया, u of f नॉट क्या होगा? ये क्या होगा? By the same logic. आइडेंटिटी मींस 2 टाइम्स s इसमें आइडेंटिटी नेगेटिव होगी। नेगेटिव आइडेंटिटी +2 और 0 एक चीज मैंने W ठीक है सही। उप्स, अभी इसकी बात नहीं कर सकता बिकॉज वो डिफ्यूजर जो V है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन, इसलिए आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज बट दिस इज राइट। ठीक, अब हम चलते हैं इसके ऊपर। U of f नॉट क्या होगा पहले ये बता दें, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी U of f नॉट की? So, okay, basically what do I want to compute is this. H cross n U of f naught H cross n. Right? Okay. So, इसके अंदर मुझे अब U of f naught insert करना पड़ेगा। वो क्या होगा? Times -0 का आउटर प्रोडक्ट mm-hmm. -आइडेंटिटी। Good,
बट ये आया कहाँ से? वैसे ही लेकिन साइन टिप है। ये आया कहाँ से? जैसे बहुत सारे केसेस में साइन टिप प्रोडक्ट जो की जगह 0 है। ठीक है। ओके, सो 2 h क्रॉस n लगा 0 पे, ये इधर से एक्ट हुआ 0 h क्रॉस n माइनस h क्रॉस n h क्रॉस n। ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। ओके, ये क्या है? ये भी ऐसा है, माइनस आइडेंटिटी। ये चीज आइडेंटिटी होती है। ओके, so I have this is my V, which is also called the diffuser V. Okay, good. So ये इसकी भी हमारा हो गया और इसका भी हो गया। अब हमने इसको S पे अप्लाई करना है, सॉरी S पे नहीं, S प्राइम पे अप्लाई करना है, राइट? क्योंकि ये आपका आ गया S आया था, U ऑफ F उस पे लगा, उससे आपका बन जाएगा इधर S प्राइम, जो कि क्या था? ये चीज, दिस थिंग cos alpha W perpendicular minus sin alpha, राइट? सो अब जब ये इस पे लगेगा तो क्या हमें मिलेगा? V of S prime, what do I get here? So you have 2 identity and cos alpha, actually this is just S prime, right? सही है, इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं, क्या बनेगा? 2S S प्राइम इधर हिट हुआ, वो उसको मैं इधर नंबर है, उसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, माइनस S प्राइम। ठीक है। अच्छा, अब एक बात, क्या ये 0 होगा? हाँ, तो मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि 0 हो, कोई गारंटी नहीं है कि ये ऑर्थोनॉर्मल है एक दूसरे, राइट? And which will see that it's not, right? So ये आप लोग कर दो, जल्दी से मुझे बता दो इसका क्या रिजल्ट बनता है। S भी आपके पास है, S प्राइम भी आपके पास है। So this is your S प्राइम प्लस के साथ आपका S। करो तो सही आप लोग cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। करें। तब ये तो मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना, करें।
दिस इसके साथ s आएगा और फिर माइनस एस प्राइम भी है, राइट? तो क्या आ जाएगा बता दें आपको, सिंपल है ये। किसी ने किया है बैठ के या कोई? cos 2 alpha cos 2 अल्फा 2 cos 2 alpha हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? cos square minus sin square cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये और बाहर 2 है बाहर 2 है, अच्छा, और ये एस है माइनस एस प्राइम, इधर भी सब्स्टिट्यूट कर दें एस और एस प्राइम अगेन, इसको एक्सपैंड करके लिखें। cos alpha w this plus sin alpha minus cos alpha w this minus sin alpha w. So let's multiply these out. What do I get? 2 cos cubed alpha, right? And then with this thing, and then so plus 2 cos square alpha sin alpha w minus 2 sin square alpha cos alpha w perpendicular, and then minus 2 sin cube alpha, right? W सही है? आप लोग बताएं। और ये भी दोनों आगे टर्म्स हैं, right? So minus cos alpha w this plus sin alpha. जो इस वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली है उनके कोएफिशिएंट्स को जब सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये तीनों। So what do I get? 2 cos cube alpha minus 2 sin squared को मैं, क्योंकि देखो अगर गौर करो इधर भी cos है, इधर भी cos है, इधर भी cos और sin है, और sin को मैं sin squared है तो 1 minus cos देख सकता हूँ, ठीक है, सिंपलीफाई करने के लिए। इसको मैं 1 minus cos squared alpha cos alpha, ये सिर्फ अभी ग्रीन वाली टर्म्स हैं, उनको उनके कोएफिशिएंट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, minus cos alpha, right? And all of this is getting multiplied with, ठीक है? Okay, what about the other one? Minus 2 sin cube alpha माइनस, यहाँ पे अब मैं उल्टा काम कर लूँगा इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्योंकि मेरे पास सारे साइंस हैं, तो प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर
and sin alpha, और थर्ड वाला कौन सा है, sin plus sin alpha। इसको एक्सपैंड करें क्या आएगा, इधर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है और वो आपको सिंपली ये चीज दे देगी। ये कर लीजिएगा, इसको कोई बड़ी मतलब चीज नहीं है। ये राइट, सो डिफ्यूजर ने क्या किया, अगर मैं इसको अब ज्योमेट्रिकली बनाऊं, ये मेरी S थी, ये मेरी S प्राइम थी, डिफ्यूजर ने ये एंगल अल्फा था, डिफ्यूजर ने इसको इधर ले गया, ये है V ऑफ S प्राइम, ये था S, ये था मैं S प्राइम, ये वाला एंगल कितना है 2 अल्फा, ये टोटल एंगल कितना है 3 अल्फा, राइट। So what did it do? यार एक बात सर, प्लीज मुझे बताएं, ये जो ग्राफिकल पिक्चर है इसका कोई फायदा हो रहा है, तो समझ आ रही है कि ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? Why is that? वेक्टर W की तरह लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, this is my solution, right? I want to basically make sure कि जब मैं measurement करता हूँ, I land closer to this, so that मुझे कम मतलब that's my solution, right? Okay. So इसने 2 अल्फा से मतलब टोटल 3 अल्फा, बट पहले अल्फा ऑलरेडी था, तो 2 अल्फा से उसको रोटेट कर दिया। अच्छा, गुड। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी होती है, और उस पे जाने से पहले can anyone remind me what was sin alpha and what was cosine of alpha? Cosine alpha root n minus 1 over n. ये था? हाँ, sin alpha 1 over root n. अच्छा, अब ये मेरी डेटाबेस का साइज है n, राइट? जितनी ये बढ़ेगा, अगर मेरे पास लाइक 1 मिलियन मतलब इंडेक्सेस हैं फॉर एग्जांपल, राइट, तो मेरा अल्फा बहुत छोटा है, ठीक है। और मैंने ये देखा कि मैं अगर एक दफ़ा रोटेट करता हूँ, एक दफ़ा अपना डिफ्यूज़र अप्लाई करता हूँ, तो उससे मेरा एंगल कितना रोटेट होता है 2 अल्फा। अगर मैं, और ये एंगल अल्फा बहुत छोटा है, छोटा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस थिंग, राइट, बिकॉज ये आपका बहुत बड़ा है n जो है, ठीक है, और when you have something huge in the denominator, this reduces to, so this implies that your alpha is very very small, approximately equal to 0, almost lying with the this axis, and I want to make sure कि मैं करता जाऊँ। अगर मैं r times अब ये डिफ्यूजर लगाता हूँ तो क्या होना चाहिए? Yes, बट उसका बिल्कुल ठीक बात है, उसकी इम्प्लीकेशन इसलिए क्या होगी? सो V S प्राइम अगर मैं लगाता हूँ R टाइम्स, एक दफा लगाया था, अगर मैं इसको हटा दूं तो what do I got was cos 2 alpha plus alpha, W perpendicular plus sin 2 alpha plus alpha and then W, right? So this was the initial angle और ये उससे rotate हो गया, right?
अब अगर मैं r टाइम्स लगाऊंगा तो क्या होगा? अगर अब मैं r टाइम्स लगाता हूँ, वो 4 जिसने बोला है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट? 2 टाइम्स जब आप लगाओगे, r टाइम्स लगाऊंगा तो क्या होगा? सिंपली इधर r आ जाएगा और इधर r आ जाएगा, राइट? You take it 2, now it's 4 alpha plus alpha. You take it 3, then it's 7 alpha, and so forth, right? I hope that's clear. So इसी के अंदर अब जो मेरी स्टेट साई होगी, जो कि यहाँ पे है, ये क्योंकि मैं r टाइम्स रिपीट करता हूँ, ये दिस वुड जस्ट बी, अगर ये 2 अल्फा था, इसको मैं छोटा बना देता हूँ यहाँ पे, राइट? और ये मेरा हो जाएगा 2r अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, राइट? सो आई वांट माय स्टेट टू बी परपेंडिकुलर। ओके, अब इसकी मैं जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है उसकी थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि v कर क्या रहा है प्रिसाइजली। अच्छा, एक assume करें कि you have any random real amplitude state, this thing over here, सही है? और आपका मीन क्या होगा? मीन एम्पलीट्यूड क्या होंगे? Sum of AX. एक्स पे सम हो रहा है, Root में ठीक है? ओके, नाउ आई वांट टू सी के ये इस मीन को कैसे अफेक्ट करता है जब मैं उस पर डिफ्यूज़र लगाता हूँ, राइट? द अदर इंटरप्रिटेशन। सो पहली बात ये क्या होगा? ये s क्या थी? all states. All states. So what was that? 1 over square root of n sum, right? Of all x's. So इस x को मैं उल्टा कर देता हूँ, ax आ गया, यहाँ पे x आ गया, x आ गया। Basically you see कि मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया है, ताकि मेरा मीन आ जाए यहाँ। This would then give me 1, but क्या यहाँ पे सम वैनिश होगा? नहीं, यहाँ पे तो नहीं सम वैनिश होगा क्योंकि दोनों x हैं। So what do I get here? इसको सोच के बताएं। मोटिवेशन क्या है? मैंने v लगाना है इस फाई के ऊपर, और मुझे पता है कि v के अंदर ये पड़ा हुआ होता है ऑलरेडी, राइट? जिसकी वजह से मैंने ये कंप्यूट पहले कर लिया है, और इसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ द मीन लिख लूँ तो फिर आई कैन शो समथिंग। Like square root and mu. Good. Is that clear? Okay, ये क्या होगा? इसकी वो क्या थी? ये थी। So 2 5, ये वो चीज़ आ गई, and then minus 5, which is then just 2 under root n mu s minus 5, सही है?
इनको अब दोबारा s और phi को मैं x की टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्या आएगा? s क्या है? 1/2 sum of all that. माइनस phi क्या था? ये कट गया, 2 mu x this thing minus तो पहले एम्पलीट्यूड था ax, राइट? अब एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 2 म्यू जो कि आपका मीन है, उसमें से माइनस ax। सो क्या किया इसने? एवरेज है ना। क्या किया इसने? एवरेज एम्पलीट्यूड का ग्राफिकली तो ऐसे साथ फ्लिप किया है ना, ग्राफिकली तो ऐसे साथ फ्लिप किया है। हाँ हाँ, नहीं सॉरी, ग्राफिकली ये हुआ, पहले ये थे, जो सोल्यूशन था वो नीचे हो गया था, वो डिफ्यूजन का एक्शन नहीं था, फेज वाले का एक्शन था। इसने अब ये किया है, सबके एम्पलीट्यूड्स रिलेटिवली कम हो गए हैं, उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं, और जो बड़े वाला है, जो सोल्यूशन है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। एक ax minus 1 है, बाकी सारे ax1 है। एक ax minus 1 था, बाकी सारे 1 थे ax minus 1 इनिशियल केस में। पहले हम 1 और स्क्वायर रूट n को बाहर ले रहे हैं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ अभी के लिए मैंने एक आर्बिट्रेरी स्टेट डिफाइन की जिसमें मैंने अज्यूम किया कि ये सारे रियल हैं, ठीक है? और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक जनरली डिफ्यूजर का एक्शन क्या होगा ऑन अ रैंडम स्टेट, ठीक है? और मैंने उसमें एक मीन डिफाइन कर दिया था, तो मैंने उसको मोल्ड किया, राइट? एंड दिस इज द रिजल्ट दैट आई गेट नाउ, राइट? सो दिस इज नाउ माय स्टेट, एंड इफ यू कंपेयर दैट स्टेट विद दिस स्टेट, वहाँ पे एम्पलीट्यूड स्टार्ट में इनिशियली ax था, यहाँ पे अब वो 2 म्यू माइनस ax हो गया, राइट? एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम ओवर हियर। जो आपका सोल्यूशन है बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस थिंग विद एन एग्जांपल। लेट्स टेक n equals to 4. n equal to 4 ले लेते हैं, और इनिशियली याद होगा जब s के अंदर सबके एम्पलीट्यूड सेम थे, तो मैं ले रहा हूँ 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/2, so that would then be 1/4. ये प्रोबेबिलिटी थी of getting any state, given कि आपके पास सिर्फ 4 की सुपरपोजिशन, ठीक है? उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जब आपने
u ऑफ f लगाया, राइट, तो एक फ्लिप हो गया। उस फ्लिप करने के से होगा ये कि आप ये कंप्यूट करें तो क्या आएगा, म्यू क्या होगा पहले तो ये बताएं। म्यू वुड जस्ट बी 3 times 1/2 minus 1/2। ये बात समझ आई या नहीं आई? दिस इज जस्ट द मीन, राइट। सो एक एम्पलीट्यूड फ्लिप हो गया जो कि अब माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिला, 1, राइट। ओके फाइन। अब हम कंप्यूट करते हैं जब ax हमारा सोल्यूशन है, राइट, और जब ax हमारा सोल्यूशन नहीं है, टू सी कि ये कि जो ax के ऊपर सोल्यूशन ये लाइन बढ़ गई है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, क्या वो सही है या नहीं। हाउ कैन वी डू दैट? ओके मैं इसको थोड़ा सा बस उसके बाद खत्म करते हैं। तो एक स्टेट को आपने मार्क कर दिया जो मैं पहले बता रहा था, ठीक है। इनिशियल एम्पलीट्यूड्स हैं all are equal to 0.5, ठीक हो गया। After u of f, so for the first phase oracle, जो आपका मार्क था वो नेगेटिव हो जाएगा 0.5 और बाकी तीनों जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। So all the three जो कि नहीं है solutions और ये जो solution है, which was represented via this diagram over here। इस particular case में आपका mu क्या होगा? So 3 into 0.5 minus 0.5 over 4. What I forgot was the division by 4. This will just be 0.25. सही हो गया, अभी तक तो कोई मसला नहीं है। अब आफ्टर v अब क्या होगा, अब आपका जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड था वो था 2 mu minus ax, राइट। तो अब बता दें प्लीज ये किस तरह से सॉल्व होएगा। सो 2 into 0.25 1 minus ax, और ax अब क्या हो सकता है, ये 4 है। क्योंकि म्यू जो है वो आपको 0.25 है। ओह ठीक, सॉरी। So this would be 0.5 minus a of x, right? और अब आपका a of x क्या होगा, इन तीनों के लिए 0 हो गया है, right? That is not how it goes, but I mean just for this example, right? कि वो reduce हो रहा है big और वो 0 हो गया है बाकी के लिए। इसके लिए वो minus 0.5 से 1 हो गया है। So it's inversion about the mean, precisely speaking. Is that point ये example समझ आ गया तो okay. अब आखिरी बात कर लेते हैं।
हमने रास्ते में हम भूल गए कि हमने ये शो करना था एक बात कि ये आर्ट करते हैं तो इसका ऑर्डर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स आता है। और दूसरा काम हमारा जो रह गया है वो ये है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इंडेक्सेस हमने लुक फॉर करना है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले काम में तो आप लोगों ने किया हुआ तो बताएं वो कैसे करेंगे। ये आपका एंगल है, राइट, एंड यू वांट दिस टू गो टू दिस थिंग ओवर हियर व्हिच इज एट π/2, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट हियर। अल्फा उधर ले जाते हैं 2r plus 1 alpha is equals to π/2। अल्फा किसके इक्वल है? साइन अल्फा was equal to 1 over square root of n, right? तो साइन इनवर्स अगर आप लो 1 over root n की तरह है। हाँ वो small angle approximation। यस वेरी गुड। तो क्या है? बस 1 over square root n। 1 over square root of n। इसको उधर लेके जाएंगे और यहाँ से आपका सिंपल अलजेब्रा से कर देते हैं। So this would then give me pi square root of n over 2 minus 1 and this is equals to 2r. So r is equals to what? Some numbers times square root of n तो आप बस square root of n कर सकते हैं क्योंकि constants matter नहीं करते। ठीक हो गया? अच्छा अब what if we have more than one solution? कोई आइडिया अगर सोच रहे हो आप कि कैसे इसको टैकल करना चाहिए? फेज ऑरेकल को थोड़ा सा लाइक चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो अभी पहला सवाल ये है कि आपको s को भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मतलब चेंज नहीं करना पड़ेगा, फॉर्म चेंज करनी मतलब पड़ेगी। पहले हम एक 2 डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस बना रहे थे तो जितने हमारी क्वेरीज होंगी उतनी हमारी डायमेंशंस होंगी। उनने सारे उन सारों में से उन सारों को भी डिस्टिंग्विश करने हैं, उन सारों को बस सुपरपोजिशन नहीं, उनको बस आपने सुपरपोजिशन मतलब ये कि यू आर लुकिंग फॉर लेट्स से 3 or 4 इंडेक्सेस, दैट्स इट इन अ डेटाबेस, राइट। तो हाउ वुड यू अप्रोच दैट? ना उस W को की सुपरपोजिशन बना लेंगे। वेरी गुड, हाँ, वेरी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सो s को क्या लिखेंगे फिर हम? पहले तो हम f of x को डिफाइन करेंगे। One, if ये होता था x is a solution, right? Is a solution. यहाँ पे आप बताइएगा xi, where now your I donates कि आप कितने इंडेक्सेस देखना चाह रहे हैं, और 0 होता था for the other case, if not. सही है? तो आपको s को कैसे लिखना है? s होगा तो वही 1 over square root of n x पे, और ये अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो पहले आप उधर w ले आते थे, अब आपके पास एक सुपरपोजिशन ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज डिफाइन इट लाइक दिस।
Hmm. Oops. ठीक है। सो ये सारे के सारे वो हैं जो कि डब्ल्यू आई इक्वल नहीं है, और ये आपके सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, और ये सारे ये टोटल आपके पास म्यू सॉल्यूशंस है। सो आई इज गोइंग टिल म्यू। ओके फाइन, अब क्या करें? नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज के लिए इधर मैं किससे डिवाइड करूंगा? पहले मैं करता था n-1 से। n माइनस में हो जाएगा। इधर भी और इधर भी। इधर क्या आ जाएगा? इसको भी करना पड़ेगा म्यू, और इधर म्यू। ये होगा स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट म्यू। This reduces to the old problem जो आपके पास थी। सिर्फ फर्क क्या होगा? n-1 की जगह पे आपका n-μ होगा। इसको मैं कह देता हूँ W परपेंडिकुलर, इसको मैं कह देता हूँ W। So ठीक है। उसी तरह से इसको मैं कोसाइन अल्फा डिफाइन कर लूँगा, इसको साइन अल्फा डिफाइन कर लूँगा। ठीक हो गया। और द लास्ट थिंग, R का जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा? यही वाला काम। इधर क्या आएगा फर्क? तो आपका अब जो है अल्फा वो किसके इक्वल होगा? साइन अल्फा आपका किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ओवर एन, राइट? तो यहाँ से आप अल्फा को लोगे म्यू ओवर एन, और इसको इधर प्लग इन कर दो। सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन आया था पहले आपका, अब स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ओवर एन स्क्वायर रूट ऑफ एन आ जाएगा। आपका अल्फा था 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, राइट? तो अब आपका जो साइन अल्फा है वो ये है। हाँ, इधर तो वो तो ऊपर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे म्यू आ जाएगा। यस, दैट इज। बट उधर के लिए मैं वो बात, वो तो इधर डिनोमिनेटर में है। दैट्स अबाउट इट। मल्टीपल क्वेरीज मेट का पार्ट है। हाँ, मल्टीपल क्वेरीज मेट का पार्ट है। हाँ मतलब मैंने अभी जो लेटेस्ट ट्यूटोरियल अपलोड किया था उसके अंदर आपके मल्टीपल क्वेरीज हैं। आई थिंक काफ़ी क्वेश्चंस में हैं वो, We just haven't done that in class. तो अब कर लिया। और अगर आप लोग कहते हो तो मैं कल ट्यूटोरियल रख लेता हूँ, वो सॉल्व करवा दूँगा जो क्वेश्चंस हैं ट्यूटोरियल के। ठीक है। और बाकी ये है कि प्रॉब्लम ज़्यादा किस में हो रही है वो बता दो, ताकि फिर आप लोग का मंडे को मैं जो ट्यूटोरियल है वो उसके अकॉर्डिंगली कर लूँ। क्वेश्चंस भी और किसी कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना है तो वो भी बता सकते हो आप लोग। मिड 2 के, हाँ, क्वांटम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन
और फेज एस्टिमेशन, ठीक है सही, और इसके क्वेश्चंस भी करा दो, ठीक। ओके, डू यू guys want me to do the questions or the revision? I would assume कि अगर आप एक चीज़ बोलोगे तो दूसरी मैं assume करके आऊँगा कि आप मतलब let's say अगर आप मुझे रिवीजन कह रहे हो तो फिर मैं रिवीजन करा रहा हूँ, which is going through the class things, which is I would prefer कि आप लोग I would prefer questions, right? That would be better, ठीक है, questions कर लो। Do we have it online? Yeah, Do we have it online? online तो मुश्किल है मेरा, that would be difficult. I'll upload the recording if you like. अब मैं वैसे solutions भी upload कर देता हूँ तो I think this will